हमें एक पहाड़ी पे ब्राउन बियर नज़र आया, एक मदर और 2 कप्स। थोड़ी देर देखने के बाद हमें स्कैन करने के बाद एक ऐसा सीन हुआ कि वहाँ पे अचानक से और एक भालू आया। 2 अलग-अलग इंडिविजुअल्स थे, एक फैमिली थी और एक अलग इंडिविजुअल था, वो उनकी तरफ आ रहा था। तो उन दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट हुआ। Hello and welcome to yet another episode of the WWF India podcast, Nature Speaks, where we talk about people and places, species and spaces. Today we are going to talk about how WWF India is working in the high altitudes of the northernmost part of India, that is Kargil, and where we are working towards building a space of coexistence between humans and Himalayan brown bears. It's basically, it's nestled between the line of control and the mighty Himalayas, especially Kargil. When we talk about this area, Dras is another space where these areas are not just regionally very politically significant or culturally important. It is also one of the last bastions of Himalayan brown bears, and it's one of the areas that needs attention at this point of time, because these brown bears are not just any endangered species that we find in India. They're also genetically very ancient in their lineages. They're one of the oldest brown bear lineages that we can find in the Indian subcontinent, and they're also classified as endangered in the IUCN Red List, and also they're protected under the Schedule 1A of the Wildlife Protection Act 1972. But now, what we also see in this area is that these already endangered animals are coming into are coming into these interactions, or rightly so, sometimes negative interactions with the communities in Kargil, and they're also having some problems with these communities oversharing these spaces, and there are also many problems arising for these brown bears due to infrastructural problems arising in the area due to the historical conflicts in the area, and also the climate change. So we also found there that there are many high conflict areas across Kargil. Likely so, the most affected area would be the Dras Valley, that has almost 16 villages which face this kind of conflict between humans and brown bears. And we also came across that the community themselves was very much willing to engage in conservation efforts and also to mitigate whatever is going on in the landscape. So we've been working with this problem and with the communities for the last 3-4 years to better understand these challenges, or how these challenges are being met on ground. I would like to call upon our team member, Mohammed Kazim, who has been working in this program for the last 14 years and is also specifically working on Himalayan brown bears for the last 4 years. Welcome, Mohammed Kazim. Hi, Preet. Thank you very much. So, Kazim, take me through, so what was the major vision behind this brown bear program? थैंक यू वेरी मच प्रीत। मेरा नाम मोहम्मद काजिम है और मैं WWF इंडिया में सिंस 2014 से कारगिल एरियाज में काम कर रहा हूँ। और पर्टिकुलरली लास्ट 2-3 ईयर से हम पर्टिकुलरली हिमालयन ब्राउन बियर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि पूरी कारगिल का नहीं, पूरी लद्दाख का एक अच्छा एक सिंबल माना जाता है। ब्राउन बियर का अच्छा एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज माना जाता है लद्दाख के इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन काफ़ी सालों से हम ये देख रहे थे कि ब्राउन बियर बहुत सारे इश्यूज ब्राउन बियर की तरफ भी फेस कर रहे हैं और ब्राउन बियर कम्युनिटी को भी काफ़ी नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहे थे। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों ने पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस WWF ने ब्राउन बियर कंजर्वेशन प्रोग्राम के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला हमें सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी था कि उसको अंडरस्टैंड करना। लोग इसके बारे में कैसे समझते हैं, ब्राउन बियर का समझ कितना है, क्योंकि बहुत सारे मिथ चल रहे थे कि ब्राउन बियर आते हैं, लोगों को अटैक करते हैं, लड़कियों को लेके जाते हैं। बहुत खतरनाक मिथ है यहाँ पे लद्दाख में, और कभी भी
बातें करते हैं, बहुत सारे मिथ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो आपके साथ स्टडी किया उसने बहुत हमें हेल्पफुल किया। उसकी बेसिस उसको एक बेस बनाते हुए हम लोगों ने जो आगे का प्रोग्राम किया जिसमें हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ मिलके किस तरह एक मॉडल बनाया जा सकते हैं, एक कंजर्वेशन मॉडल बनाया जा सकता है, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अगर मैं Yes. आपसे पूछना चाहूँ तो जो भी हम कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन की अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम जो भी नुकसानात होते हैं उनको हम बचाव कैसे करते हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए आप क्या करते हैं ऑन ग्राउंड? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं जो कम्युनिटी के साथ ही मिलके सबसे पहले ये देखा जाता है कि हिस्टोरिकल उनका किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट रहा है। जब उससे हमें पता चलता है कि फ्रॉम लास्ट 10 टू 15 ईयर्स से ये बहुत हाई कॉन्फ्लिक्ट रेस हो रहा था। पर्टिकुलर अगर कॉन्फ्लिक्ट को बात करते हैं तो लोगों को हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के साथ-साथ में लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन मेजर डालता है, जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे एनएडर्स है, फॉक्सलेट है, जो एनएडर्स का अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, जब एनिमल उसके पास से गुजरता है तो जो इसका रेस के अंदर आते हैं, इंफ्रारेड के अंदर जब आते हैं, खुद से उसका जो अलार्म बजना, लाइट देना, ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थी जो कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने की कोशिश किया। दूसरा हम लोगों ने फॉक्सलाइट बहुत सारे बांटे हैं। जब फॉक्सलाइट की बात करते हैं तो उसमें से डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, रेड, येलो, ब्लू कलर, जो जिसका रेस बहुत दूर तक चले जाते हैं। बेयर्स जब उनके पास आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटी करके वहां से दूर चले जाना। साथ साथ में उनको कैसे, हम तो पूरा ऑलवेज एक छोटा सा टीम लेके कम्युनिटी में नहीं रख सकते, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे हैंड होल्डिंग करना है, वो हम लोगों ने कम्युनिटी को ट्रेनिंग दिया। कम्युनिटी ने इस चीज को एडॉप्ट किया कि इसको किस तरह चलाना है। सेकंड चीज है, साथ साथ में रात को पेट्रोलिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे फ्लैश लाइट, जो सोलर फ्लैश लाइट, जहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखा जाते तो हाई पीक जो उसका कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं वो अक्टूबर नवंबर रहते हैं और अप्रैल में रहते हैं। उस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत इशू है। तो हम लोगों ने सोलर बेस्ड जो सोलर लाइट है, जो फ्लैश लाइट, जो हम दूर दूर तक स्कैन कर सकते हैं लोग बाहर भगाने के लिए या पेट्रोलिंग पर्सनल्स को हेल्प करने के लिए, वो हम लोगों ने काफी लोगों को इस चीज में भी हेल्प किया है। थर्ड चीज, एक चीज बताऊं तो हम लोगों ने एक नया मॉडल अभी शुरू किया है। लकीली वो काफी एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है, जिसको हम बेयर प्रूफ कोरल कहते हैं। जो आज तक ये भी एक स्टडी में आया कि लोगों का ट्रेडिशनल जो कोरल है, क्योंकि पहले तो इतना कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, तो लोग अपनी जो कोरल बनाते कि जहाँ पे भेड़ बकरियों को रात को रखते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है बहुत टेम्परेरी थे, मड के बने हुए थे, लकड़ी के दरवाजे थे। लेकिन हमारा स्टडी में ये नजर आया कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मिटिगेशन थे वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थे। तो हम लोगों ने नया जो इंट्रोड्यूस किया उसमें हम लोगों ने आयरन रॉड लगाना, सीमेंटेड प्लास्टर करना, उसको ऐसे वे में बनाना चाहिए, उसका जो दीवार बनाने का शेप है भी उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस लाए, ताकि जो बेयर्स जो है जब खड़े हो जाते हैं तो कम से कम हम सबको पता है कि 7-8 फीट का बालू बन जाता है। तो हमारा लद्दाख में जो है उसका घर का 1 फीट होता है, तो जो गाय वाएं रखते हैं वो तो 4-5 फीट का होता है। उसके ऊपर छत पे चढ़ जाना, छत को खोद के निकालना, वो सब इशू को हम लोग को जब एड्रेस किया तो हम लोगों ने एक जो नया मॉडल किया है कि बेयर प्रूफ कोरल को हम लोगों ने 15 फीट का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जो लेंथ में 15 फीट हो, और इसके ऊपर उस बाहर से अच्छे से सीमेंटेड प्लास्टर हो, ताकि उसको अच्छे से खरोच नहीं पाए, ग्रिप ना बन पाए। और उनका दरवाजा चेंज करके हम लोगों ने आयरन डोर बनाया। लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए क्या ये सक्सेसफुल रहता है कि नहीं, जो एनाडर फोक्सलाइट जो हम डालते हैं लोगों का कम्युनिटी के साथ, उसको सक्सेसफुल रहता है कि नहीं, किस तरह मॉनिटर करने से जो कैमरा ट्रैप हमारा रहता है, तो उन लोगों को आप लोगों ने बहुत सारे कैमरा ट्रैप्स विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन कारगिल के हेल्प से हम लोगों ने तकरीबन लास्ट ईयर हम लोगों ने 30 कैमरा ट्रैप्स हम लोगों ने डिप्लॉय किया, जो जो एनाइडर्स एंड फॉक्सलाइट के साथ है। उनको ये देखते हुए कि उनका कितना इफेक्टिवनेस है, वो सब लोगों को हम लोगों ने ट्राई करने की कोशिश किया। और अगर हम अवेयरनेस या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो उन सब चीज़ों में आप कैसे काम करते हैं? हाँ, तो अवेयरनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि बालू को लेके जो मिथ लोगों के अंदर है उसको दूर करना, वो ज़रूरी रहता है कि स्कूल्स चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करना। पहले ये देखते हैं कि कौन से एरिया में ज़्यादा हाई कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्जांपल द्रास में, कारगिल में और ज़ांस्कर में, पर्टिकुलर उस जगह के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना डिफरेंट, जैसे कि स्नो लेपर्ड डे है, बेयर्स डे, या फिर हम लोग अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक, उनमें हम लोग डिफरेंट तरीके से, जैसे कि ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन रखना,
स्पीचेस रखना या रोड हम लोग कहते हैं वॉकथॉन जिसमें हम लोग साइकिलिंग या फिर वॉक करना कम्युनिटीज के अंदर में, इससे ये दिखाने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि जो बिलोंगनेस ने इसलिए बिलोंगनेस की कि हमारी तरफ से हमारे पास है, उनको अपना फील करने के लिए। सेकंड चीज, स्कूल्स में बहुत सारे जो मिड डे मील होते हैं उन पे बहुत अटैक होते हैं, या अपनी जो राशन डिपो होते हैं उनके ऊपर बहुत होते हैं, और जो गाँव के आसपास में जो गार्बेज डंप चाहे सिटी का हो चाहे लोगों ने फेंका हो, सारे गार्बेज डंप के ऊपर बहुत अट्रैक्शन होता है उसका बैर्स का। तो उनको कैसे कम किया जाता है, किस तरह लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सब लोगों को नुकसान होता है, उसको कैसे कम किया जाता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह कर रहे थे। Thank you so much, Mohammed Kazim, for this insightful information that you provided us. It was really grateful, and I was very grateful of you to explain all these things, how these things work on ground. Uh, Now, I would like to call upon our Bear Brothers थैंक यू। from Kargil. We have an initiative called Bear Brothers that is going on in Kargil, and we have Muzammil Lone and Muhammad Umar who work Hi, as Bear Preet. Brothers in the landscape. Hi, Mohammed Kazim. Muhammad Hi, Komal ji. Umar is specially trained in patrolling and helping the communities for filing compensation cases and also in awareness programs. Whereas Muzammil is trained as a local guide and a naturalist who also takes people around and does responsible and sustainable ecotourism in the landscape, also influencing other people for alternative livelihoods who are affected by the brown bears. So yeah, let's talk to Muzammil and Umar. So Umar, प्लीज आप हमें अगर ये बता पाएं कि आप कब से WWF के साथ एज ब्राउन बेयर ब्रदर काम कर रहे हैं? थैंक यू प्रीत सर, यहाँ पर मौका देने के लिए, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए अपनी कम्युनिटी के बारे में। तो हमने ये WWF इंडिया के साथ जो काम करना एज वॉलेंटियर काम करना स्टार्ट किया पिछले 2-3 साल से हम ऐसे वॉलेंटियर काम कर रहे हैं। तो हमने एक इनके साथ मिलके एक ब्राउन बियर ब्रदर्स का जो है, बियर ब्रदर्स का जो हमने ये नाम रखा था ताकि हम इसमें सेव कर सकें, अपने ब्राउन बियर के बारे में बता सकें अपनी कम्युनिटी को थ्रू WWF इंडिया, जो हमें इसके बारे में, इसके अवेयरनेस इकोलॉजी के बारे में बताती है क्या करना है क्या नहीं। तो ये पूरा सीख के हम अपनी जो एक लैंग्वेज बैरियर रहता है, द्रास में दर्द रहते हैं, ऐसे वॉलेंटियर काम करने का मौका मिला, अपनी कम्युनिटी को अपनी लैंग्वेज में ही समझाने का मौका मिला। और जो बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्राउन बियर का आना एक कम्युनिटी के अंदर नुकसान करना, या लोग उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या रिस्पांस होता है लोगों का। तो हम अच्छे से समझा सकते थे इस चीज़ को थ्रू WWF इंडिया। हमें थोड़ा सा ये भी पेशे से प्राइवेसी या सिक्योरिटी मिलती थी कि हम लोगों तक क्या क्या पहुंचा सकते हैं, क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका माइंडसेट चेंज करवा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम करते हुए कोई ऐसा मोमेंट आया या ऐसा लम्हा आया जो आपको मतलब आपके लिए यादगार हो गया, जो आपको हमेशा याद रहेगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑल सडन होती हैं और यादगार बन जाती हैं। हमें एक तो अच्छे से जो स्टडी करना, एक ब्राउन बियर जो एक रियर जो स्पीशीज हमारे द्रास में पाई जाती है, हम लोग इस चीज़ को अपने पहाड़ों में रखकर टीवी में देखते थे। ये एक चीज़ फैसिनेटिंग थी, अपने इलाके में है, अपने साइड से घूम रहा है, अपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ में, वो भी हमारा पार्ट है, उसको हमने कभी देखा नहीं था। जब हमें वो देखने का मौका मिला, उसको जानने का मौका मिला, उसके बिहेवियर के बारे में, उसका होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बहुत ही हमारे लिए, क्या कह सकते हैं, लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया उमर। मुजम्मिल, अगर आप थोड़ा अपने काम के बारे में बताना चाहें कि आप कैसे काम करते हैं, या फिर आप टूरिज्म के थ्रू कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज करते हैं? एक अच्छा इनिशिएटिव WWF में, सबसे पहले तो मैं टूरिज्म के अंदर काम करता हूँ और द्रास से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो द्रास
एक ऐसी जगह है सेकंड कोल्डेस्ट इनहिबिटेड प्लेस, और साथ ही साथ हिमालयन ब्राउन बियर जो एक एंडेमिक कीस्टोन स्पीशीज द्रास में पाया जाता है। तो द्रास अभी तक लौकिक एक टूरिज्म मैप में नहीं है। तो WWF ने यहाँ पे एक ऐसा इनिशिएटिव लिया होम स्टेज का, उसमें से मैं एक होम स्टे का ओनर हूँ। तो जो मुझे WWF से मिला था, तो उसके थ्रू हमें पहले ट्रेनिंग दी गई। यहाँ हमें ले गया यहाँ से हेड क्वार्टर्स में, वहाँ हमें ट्रेनिंग दी होम स्टेज में कैसे आपके गेस्ट के साथ आपको बिहेव करना है, कैसे उनके साथ टक करना है, कैसे उनको वेलकम करना है। ये सारी चीज़ें हमें एक होम स्टे के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं वो सारी ट्रेनिंग वहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई। उसके लिए WWF इंडिया का थैंक्स। उसके बाद जो मैं साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे टूर गाइड और नेचुरलिस्ट भी काम करता हूँ। तो हम सब जानते हैं द्रास फेमस है ब्राउन बियर को लेके। तो ब्राउन बियर टूर्स कराते हैं हम यहाँ पे। तो एक इको टूरिज्म, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम यहाँ पे लेके चलते हैं साथ में कम्युनिटी को भी, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है। और साथ ही साथ यहाँ लोग इतने अवेयर भी नहीं हैं कि कैसे हैंडल करना है, कैसे ब्राउन बियर के साथ कैसे उनको बर्ताव करना है, ये चीज़ें उनको इतना पता नहीं है। तो हमें साथ ही साथ जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी हम पहले ही अवेयर करते हैं कि आप एक अनलॉकेड विलेज में जा रहे हो, तो आपको ऐसे यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं या यहाँ के जो रीति रिवाज जो भी हैं उनको साथ लेके तो हम एक प्रॉपर वे में उसको गाइड करते हैं, और साथ ही साथ उस कीस्टोन स्पीशीज के बारे में उनको बताते हैं। क्या आप दोनों को ऐसा लगता है कि जो भी काम हम इस ब्राउन बेयर प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, लैंडस्केप में कर रहे हैं, इससे क्या लोगों का नजरिया भालुओं की तरफ बदल रहा है, या बदल रहा है तो वो कैसे बदल रहा है? तो लाइवलीहुड के और लेके चलूँ तो यहाँ लोग जॉब्स पे डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर। अब अनएम्प्लॉयड यूथ भी बहुत है। तो ये एक हम देखते चलें तो हमारे यहाँ जो हिमालयन ब्राउन बियर है, ऐसे टूरिज्म के सेक्टर, एक वाइल्ड लाइफ टूर्स के उसको लिहाज से लेके हम एक अच्छा लाइवलीहुड देखने को मिलेगा हमें कि हम इसको आगे तक लेके जाएं। थैंक यू मुजम्मिल, थैंक यू जी, उमर, बिल्कुल। आप दोनों को थैंक ज्वाइन करवाने के लिए, और आप लोगों ने हमें बहुत अच्छे से अवेयर किया कि थैंक ऑन यू सर। ग्राउंड आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच. These kinds of things that we in WWF are doing on ground, these actually highlight, how there's now, building of local ownership and pride, and there's a transformation of fear, into awareness and stewardship towards brown bears in Kargil. And in future, what we in WWF are trying to do, especially for brown bears in Kargil, is that we are also going to extend this program to areas where the species is understudied. We have no idea about the nature of conflict, and also the people are still not aware of brown bears. So valleys like Zanskar Valley and Suru Valley, we are going to extend the work in these larger areas. And also there's a need of assessment of these species and these landscape ecologically, whether it be how these landscapes and rangelands are changing over time, what is the usage of local nomads or the transhuman communities in these landscapes, and how do these usages of different community sectors influence how these brown bears traverse through these landscapes. And also there are many other research that is underway. For example, there are social surveys across 14,000 square kilometers of Kargil that we are undergoing. We're trying to understand what are the local attitudes and perceptions of people. And on the other hand, there is also camera trap surveys that are going on to assess where and how many of these animals are in this landscapes to better design our mitigations for future. बेवफा
है राम।